السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے سب لوگ، مائک آن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی باللسان یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب، میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات، ہم جو ہے پچھلا ایک ہفتہ تقریباً ہم لوگ جو ہے مت کا سبق پڑھ رہے تھے، مت کا لیسن پڑھ رہے تھے۔ مت کے لیسن میں ہم جو ہے 4 قسم کے مت پڑھے، مت کے 4 قسمیں ہم پڑھ لیے، اور پھر آگے ہم جو ہے اور مزید 4 قسم کے بعد میں پڑھیں گے۔ اب تک ہم 4 قسم کے مت پڑھے، اور مت کے تعلق سے پوری تفصیل ہم کو معلوم ہوئی، مت کیسا ہوتا، کب ہوتا، مت کے کتنے کمپوننٹس ہیں، شرط مت اور سبب مت، شرط مت کتنے ہیں، سبب مت کتنے ہیں۔ شرط مت 2 ہے، مد اصلی اور لین۔ لین کبھی کبھی آتا، مگر مد اصلی ہمیشہ رہتا۔ جہاں مد اصلی نہیں رہتا وہاں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی ہو سکتا۔ اور سبب مد میں جو ہے حمزہ سے بننے والے 2 مد پڑھے۔ ایک ہے مد متصل جو ایک ہی کلمے میں ہوتا اور مد اوریجنل اور حمزہ اوریجنل شکل میں رہتا، اور دوسرا جو ہے مد منفصل 2 کلموں کے درمیان ہوتا اور حمزہ الف کی شکل میں رہتا ہے نا۔ اس کے بعد ہم جو ہے جزم سے بننے والے 2 مد پڑھے، مد عارض، مد لین عارض۔ مد عارض ہمیشہ آیت کے ختم پہ آتا ہے، اور آیت کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم ساکن کرتے روکنے کے لیے، اور اس سے پہلے جو ہے شرط مد موجود ہوتا ہے، تو وہ جو مد ہوتا ہے جہاں ہم روکتے ہیں آیت کے ختم پہ، اس کو بولتے ہیں مد عارض۔ اس کی مقدار کشش 6 رکعت ہے، اس کو 6 رکعت لمبا کر کے پڑھیے۔ مد عارض کو 6 رکعت کر کے لمبا پڑھیے۔ ہم کیا کریں، پورے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 100 150 تک آپ لوگ دیکھیں کیسا مد عارض ہوتا، اور ہر جگہ جو ہے زبر زیر پیش تھا تو ہم کیا کریں، نکال کے جزم لگائے اور وہاں مد اصلی موجود تھا تو مد عارض ہوا۔ اسی طریقے سے لین میں بھی جو ہے ہم دیکھے، کل سورہ پڑھے تھے لإیلاف قریش، تو اس میں بھی جو ہے ہم آخری حرف کو ساکن کرے تھے روکنے کے لیے، اس سے پہلے لین موجود تھا۔ شرط مد کیا تھا؟ لین ہے نا، شرط مد لین تھا، لیکن زیادہ تر قرآن میں 99.9% مد اصلی ہی شرط مد ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے لإیلاف قریش پڑھ کے اس کا انالائز کر کے ہم آپ بھیجے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سورہ خواب بھی کرنے کا اس سے بولا تھا، اور خواب کی بھی انالائز کرنے بولا تھا۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ کر کے بھیج رہے ہیں، اور
बहुत से लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग होमवर्क करें ताकि जो है सबका सबक पक्का हो। आप जो है आज जो है मैं आप लोगों से जो है सवाल भी करूंगा पहले के सबकों के बारे में, देखूंगा कौन कौन कैसा परफॉर्म करते, और फिर हम नया सबक भी पढ़ने वाले हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारे को बहुत से लेसन पढ़ना है, बहुत आगे जाना है। तो अभी तक बहुत कम लोग आए, लेट आ रहे हैं लोग, क्या बात है समझ में नहीं आया। बहुत अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, स्क्रीन पे दुबई नजर आ रही, दूसरा स्क्रीन नहीं नजर आ रहा है, दुबई दिख रही जब से। हाँ, अभी दूसरा स्क्रीन शुरू नहीं करा ना पढ़ाना, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी खाली बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब जो जो पढ़ाने वाला है वो डालूंगा, अभी नहीं मालूम क्या करने वाला है। तो आप जो है मैं पिछली सबकों के बारे में भी आपसे सवालात करूंगा, देखेंगे आप लोगों का कैसा वो है। जनाब कौन है भाई हमारे खलील वानी, मोहम्मद खलील वानी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मदद हुरूफ मदद 3 है सर। कौन से कौन से? हमजा साकिन है सर, वाव साकिन है, या साकिन। अलीफ या वाव, हुरूफ मद्दा कौन से है? स्क्रीन कुछ नहीं, स्क्रीन प्लेन है सर। हाँ, स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे नहीं डाला, स्क्रीन पे डाला तो आप देख के बताते क्या? सर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे डाला तो आप क्या देख के पढ़ेंगे स्क्रीन पे से? सर मैं आपसे आपका टेस्ट ले रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मेरे को जवाब बताओ। सर हुरूफ मद्दा के जो 3 हर्फ है, अलीफ या वाव, वो तीनों की क्या शक्ल है? वो कब मद होते, कब मद होते, कब मद, क्या क्या इसकी शक्ल है? सर अलिफ के सर है जबर होता है सर, वाव के पेश होता है सर, या के जेर होता है सर। इसका सही जवाब क्या है मालूम है? खाली अलिफ से पहले जबर वाला हर्फ होना, या साकिन से पहले जेर वाला हर्फ होना, जेर, वाव साकिन से पहले पेश वाला हर्फ होना चाहिए। सर आपका जवाब सही नहीं था, जवाब सही था। बताओ तीन शक्लें बताओ मध्य असली की। मध्य असली की अलिफ से पहले सर, जब अलिफ से पहले जबर वाला हरूफ होना चाहिए जी, तो या से पहले जेर वाला हरूफ होना चाहिए, वाव से पहले पेश वाला हरूफ होना चाहिए। वेरी गुड। उसको कैसा बोलना मालूम? खाली अलिफ से पहले जबर वाला हर्फ, या साकिन से पहले जेर वाला हर्फ, वाव साकिन से पहले पेश वाला हरूफ चाहिए। फिर दोबारा बताएं। अलिफ साकिन से पहले सर जबर वाला हरूफ होना चाहिए। अलिफ साकिन नहीं, अलिफ खाली अलिफ से पहले जबर वाला हरूफ होना चाहिए, या साकिन से पहले जेर वाला हरूफ होना चाहिए, वाव साकिन से पहले पेश वाला हरूफ होना चाहिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। फजलुर रहमान साहब, जनाब फजलुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुरूफ लीन कितने हैं? 2 सर। कौन से? जी, कौन से दो हरफ कौन से? वाव और या। ये कब लीन होते हैं, क्या इसकी शक्ल है? यूनिवर्स से पढ़ रहे हैं तो क्या सूरत हाल है मैं देख रहा हूँ आज। तब ये वाव और या सही बोला आपने, 2 हरूफ लीन है, लेकिन ये लीन कब बनेंगे? ये जो या में जो है, या के पहले जो जबर आ जाए या वाव के पहले जबर आ जाए।
हाँ, उसका सही जवाब क्या है? वाउ साकिन से पहले जबर वाला हर्फ हो, या साकिन से पहले जबर वाला हर्फ हो। या साकिन यानी वाउ जज़म वाली और या जज़म वाली सुकून वाली। बोलो आप फिर दोबारा। या साकिन से पहले जबर वाला हर्फ हो, वाव साकिन से पहले जबर वाला हर्फ हो, तो फिर वहां पर लीन। लीन किसको बोलते हैं? लीन किसको बोलते हैं? लीन बोलते हैं नर्म करके पढ़ना, नर्म लहजे से पढ़ना, सॉफ्ट Soft voice. पढ़ना, सॉफ्ट voice. पढ़ने को बोलते हैं लीन। लीन किसको बोलते हैं? सॉफ्ट पढ़ने, सॉफ्ट रीडिंग, हाँ, नरम लहजे से पढ़ने को लीन बोलते नर्म लहजे से पढ़ने। अब मैं बोले बात बोल रहे हैं आप लोग, मैं कब कितने दिन से ये बात बता रहा हूँ आप, है ना? अब इसको कैसा पढ़ेंगे? बाइना यदैहि, बाइना, बाइना, काइफा, सौफा, है ना? हम पढ़ रहे हैं इतने दिन से, है ना? जी। लौ तालमुन, लौ, है ना? इसको नर्म लहजे से पढ़ने को लीन बोलते। मद्दे असली की मकदार कितनी है खींचने की? मध्य असली की एक हरकत होती है। और जबर और जेर और पेश की? आप शुरू से आ रहे क्लास में या बीच में से आए? जी, शुरू दो से हरकत होती है। 2 हरकत। बस अब उन्हें बोला एक इन्हें जगह बोला, अभी तक मध्य असली नहीं मालूम। तो हम कैसा, हम क्या बड़े सबक पढ़ेंगे? मध्य असली की कितने हरकत का होता, मध्य असली कितना खींचना नहीं मालूम है हमको। मध्य असली की मकदार कशिश 2 है, वो खाली अलिफ से पहले जबर हो या साकिन से पहले जेर हो, या वो उसकी मकदार, उसका खींच कितने हरकत खींचना? 2 हरकत। इसीलिए मध्य असली इज इक्वल टू खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। जैसे ये जा है, ये 2 हरकत का ये जा है ना? उसके बाद खड़े जबर वाली जा को भी, इसको भी 2 हरकत पड़ी। ये दोनों बराबर है? जा 2 हरकत। जी, जीम के नीचे जेर है और या साकिन है, ये जीम पे जो है खड़ी जेर है, 2 हरकत हो गई। जी, ये जू, ये मध्य असली है। या वाव साकिन से पहले पेश है, तो वैसी जीम पे अगर उल्टा पेश है, ये भी 2 हरकत, है ना? मध्य असली की मकदार कितनी है? 2 हरकत। 2 हरकत। पूछते बोल देना मध्य असली की मकदार 2। हम बड़े मत पढ़ लिया, मध्य असली की मकदार नहीं मालूम है, तो क्या फायदा हुआ पढ़ के? मत बड़े मत पढ़ के क्या फायदा हुआ? मध्य असली समझ में नहीं आया, उसको दूसरा मत कैसा समझ में आएगा? नेक्स्ट जनाब आगा अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। लामे जलाला किसको बोलते हैं? लामी जलाला जहां मोटा पड़ा जाए। लामे जलाला किसको बोलते हैं? इसमें जलाला किसको बोलते हैं? फिरदौस अकरम साहब। लामी जलाला मोटा पड़ा जाता है। फिरदौस अकरम साहब, जिसका नाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। लामे जलाला किसको बोलते हैं? अल्लाह के नाम से पहले, अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर सवाल हो पड़ा क्या है? सुनिए, आप सवाल सुन के साथ जवाब दीजिए। जी। लामे जलाला किसको बोलते हैं? लामी जलाला, यार आप हम लोग 1 महीने से मुसलसल पढ़ रहे चीज़ा। अल्लाह के नाम में जो लाम है उसको बोलते हैं लामे जलाला। खत्म, जवाब इतना ही है। जी, अल्लाह के नाम में जो लाम है उसको बोलते हैं लामे जलाला, लामी जलाला। या इसमें जलाला। बस खत्म, इतना नहीं बोल सक रहे यार आप लोग। 1 महीने से लामे जलाला पढ़। लामे जलाला पढ़ने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। 2 तरीके हैं। एक मोटा पढ़ना, एक पतला पढ़ना। एक मोटा पतला पढ़ने पढ़ना। को तफखीम बोलते हैं, पतला पढ़ने को तरकीक बोलते हैं। मोटा कब पढ़ते हैं? जब अल्लाह के नाम से पहले जबर हो, मोटा पढ़ते हैं। वो यानी एक जवाब दिए वो भी आधा, एक जवाब दिए वो भी आधा। अल्लाह के नाम से पहले अगर पेश या जबर हो, ये पूरा जवाब है ना। पहले क्या हो गया था? पहला आधा हुआ था। पहले हाँ, एक बार फेल हुआ तो दूसरे साल पास करेंगे, फिर पहले साल तो फेल हो जाएंगे। हमारी जिंदगी इसी पे खत्म हो जा रही जी। 2 अल्लाह के नाम से पहले जबर हो या पेश हो, अल्लाह का नाम मोटा पढ़ा जाएगा। मोटा जी। पढ़ने को तफहीम बोलते हैं,
اور ترخیق سے کب پڑھا جائے گا, پتلا کب پڑھا جائے گا؟ جب اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو. زیر ہو. اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے, پتلا پڑھیں جی گے, زیر ہونے کی وجہ سے پتلا پڑھیں گے. ماشاءاللہ. بھٹ صاحب, جناب امین بھٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین بھٹ صاحب یہ بتائیے, یہ زبیر بھٹ صاحب سے نہیں, امین بھٹ صاحب سے پوچھ رہا ہوں. امین بھٹ صاحب بولے تو زبیر بھٹ صاحب. امین بھٹ صاحب نہیں کھولنا چاہ رہے مائک. ظہور عباس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حروف غنہ کتنے ہیں؟ حروف گناہ 2 ہے سر, نون مشدد اور میم مشدد. ایک سوال کے 4 جواب دے دیا, ایک سوال کا ایک ہی جواب ہوتا. حروف غنہ کتنے ہیں؟ 2 ہے سر. بس. کون سے ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد. یہ بھی غلط. کون سے نون اور میم, یہ کب غنہ ہوئیں گے؟ جب مشدد نون پہ ہوگی. تشدید ہوئے اور میم پہ تشدید ہو, پھر غنہ ہوئیں گے. ہم 3 سوالوں کا آپ ایک ہی جواب میں سب پورا بول دیا. غنہ کس کو بولتے ہیں؟ گناہ ناک میں سے جو آواز نکالتے ہیں, ناک کے بانسے سے آواز نکالنے کو گناہ کہتے ہیں. ناک کے بانسے میں آواز کو لا کے 2 سے 3 حرکت تک گھما کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. گناہ کہتے ہیں جی سر. بس آپ خالی آخری کا جملہ دوہرا تو پورا کہانی میں ہی بولوں گا, آپ لوگ خالی آخری ہاں سب صحیح ہے, اوکے. کہانی پوری ملسا بھی بولنا. یہ اگر نون پہ زبر زیر پیش ہے تو غنہ کر سکتے ہیں سر, مشدد ہونا چاہیے بس. میں زبر زیر پیش ہے تو کر سکتے ہیں, بولے تو کر سکتے ہیں سر, لیکن مشدد ہونا چاہیے. ماشاءاللہ, کیا جواب ہے. یہ بتائیے کہ حروف خلخلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں سر. یہ دوسرے صاحب کس کا مائک کھلا ہے جو جواب دے رہے ہیں؟ جو جسے پوچھے جس کا نام ہے انہیں بولا, باقی والے سب مائک بند کریں. جس کا مائک کھلا ہے باقی والوں کا. 5 ہے سر. کون سے؟ قاف طا با جیم دال. یہ کب خلخلہ ہوئیں گے؟ جب یہ سکون ہوں گے, سکون ان پر جزم ہوگی. یہ 5 حرف کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ قطب جد. خلخلہ کتنے قسم کا ہے؟ قلقلہ 2 قسم کے سر. کون سے؟ قلقلہ صغیرہ, قلقلہ کبیرہ. ماشاءاللہ صحیح بتایا آپ نے. مشتاق میر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تجدید والا حرف کتنے بار پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار سر. کیسا؟ ایک جزم کے ساتھ اور ایک زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ, جو بھی. ایک جزم کے ساتھ, ایک اس کی حرکت کے ساتھ, زبر ہو, زیر ہو یا پیش ہو. ایک بار جزم سے اور ایک بار زبر زیر یا پیش سے. ہاں, ایک بار جزم سے, ایک بار اس کی حرکت سے, جو حرکت بھی وہاں ہوگی. اور جزم کیسا پڑھا جاتا ہے؟ سکون کیسا پڑھا جاتا ہے؟ سکون نہیں معلوم. نہیں سر. عبد الحامد صاحب. عبد الحامد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سکون کیسا پڑھا جاتا ہے؟ سکون مد لازم سے پڑھا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو ایک نئی چیز بول دی آپ. ارشاد حسین صاحب. آدھے لوگ بالکل آنکھوں پہ پٹی بن کے چل رہے ہیں. ارشاد حسین صاحب, اچھا مائک ہی نہ کو کھولا, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ارشاد احمد, ارشاد حسین, کوئی تو مائک کھولو. نہیں کھول رہے.
सैयद जिलानी, अब्दुल खादर जिलानी। हजरत वालेकुम ये सलाम। सामने वाले हुरूफ से मिला के पढ़ा जाता सर जज्म। गलत बोल रहे हैं ना आप, जरा सही बोलिए ना। जो जो हुरूफ पे जज्म है उसके सामने वाला हुरूफ से मिला के पढ़ा जाता सर। गलत है, सही नहीं बोल रहे। मकसूद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मकसूद आलम, मकसूद आलम साहब माइक नहीं खोल रहे। महबूब खान। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम। जज़म वाला हर्फ कैसे पढ़ा जाता है? उससे पहले वाले हर्फ के हरकत के साथ पढ़ा जाता वेरी है। गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। 1 महीने से मैं रोजाना बोल रहा हूँ ये बात। जज़म वाला हर्फ हमेशा अपने से सामने वाले का नहीं है, आगे वाला नहीं। एक साहब आगे वाला बोल रहे, जब से मैं बोल रहा हूँ गलत है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। सामने वाला नहीं, पिछले वाला। हमेशा जज़म अपने से पहले वाले, अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है। आगे वाले नहीं, सामने वाले नहीं, पिछले वाले से। अपने से पहले वाला, पिछला जी, उसकी पे अगर वहां हरकत नहीं है तो क्या करता उन्हें? और भी पीछे वाला। वेरी गुड। और पीछे जाता। वहां पे भी नहीं है तो और पीछे जाता, वहां पे भी नहीं है तो और पीछे जाता। एक लाइन पीछे है तो एक लाइन पीछे से पकड़ के लाता। हरकत चाहिए उसको, जज़म को हरकत चाहिए, सुकून को हरकत चाहिए। जिस पे सुकून है उसको क्या बोलते हैं? साकिन सर। वेरी गुड। जिस हर्फ पे तजदीद है उसको क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते। लाहौल वाला कुव्वत है। जिस हर्फ पे मुशद्दद, तजदीद है उसको क्या बोलते हैं? मुशद्दद। तनवीन, तनवीन तो अलग चीज होगी ना, 2 ज़बर 2 ज़ेर। मुशद्दद। आप क्या पूछ रहे? सवाल पहले सुनना, सुन के सोचना। फट बोल के बोल दिया तो कुछ तो गलत हो जाता। आपको मैं पूछ रहा हूँ तजदीद वाले हर्फ को क्या बोलते हैं? बोले तो तनवीन। मुशद्दद से कोई उसका कोई तुक भी नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई उसका कोई वो नहीं है, ज़हन में है ना। अगर इसके बजाय कोई दूसरा सवाल करते, कोई दुनिया के पॉलिटिक्स का या क्रिकेट का, तो फटक से बोलते। ये बताइए कि अलीफ की कितने किस्में हैं? एक ही आदमी बात करे, सब लोग माइक खोल के नहीं बोले। जिससे मैं पूछ रहा हूँ वही अपने बोले। मकसूद आलम साहब माइक खोले। मकसूद आलम। नहीं खोल सर। मालिक कितने बार पुकारे तो ना माइक खोलेंगे आप? जी सर, वो डेट प्रॉब्लम। कब से आपका नाम पुकार रहा हूँ मैं, आप माइक ही नहीं खोल रहे। अलीफ की कितनी किस्में हैं हमारे मकसूद आलम साहब? दो किस्में सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। दूसरे आदमी, दूसरे साहब माइक कौन खोल? जिस बाकी वाले माइक बंद करें। मैं जिसका नाम पुकारा हूं वही बात करना। ये खान कौन है? ये माइक बंद करे। खान माइक बंद कर दो। नहीं बंद, खान का माइक मैं बंद करो। खोलना नहीं आ था, मैं बंद कर रहा हूँ। माइक बंद करो बोल कराना भी मुश्किल है आप लोगों से। जी सर। बस आपका हो गया। आप बुरी तरीके से फैले, कुछ भी आप सही नहीं करे। आप बंद कर दो। आप माइक बंद करके कापी में जो नोट्स है उसको निकाल के पढ़ते रहो आप घर में। मोहम्मद इस्माइल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अलीफ की कितने किस्में हैं? अलीफ की 4 किस्में हैं। कौन सी? अलीफ मकसूद आलम साहब 2 बोल रहे हैं, आप 4 बोल रहे हैं। हाँ, 4 कौन सी 4 किस्में? कुछ भी बोल दिया हो, काम खत्म। कौन सी है बताइए ना हमारे। क्या हुआ? नहीं मालूम। जी नहीं मालूम। मोहम्मद ताबिश। अस्सलाम वालेकुम। अलीफ की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। कौन सी? असली,
वसली हमजा हमजा साकिना। माशाल्लाह। असली अलिफ किसको बोलते हैं? असली अलिफ जो पढ़ा जाता है, वसली अलिफ किसको बोलते हैं? जो पढ़ा नहीं जाता है, लिखा जाता है। हमजा किसको बोलते हैं? हमजा हरकत के साथ आने वाले अलिफ को हमजा बोलते जिस अलिफ पे जबर जेर पेश हो या खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टी पेश हो, हरकत कोई भी हरकत हो, उसको बोलते हैं हमजा, अलिफ नहीं बोलते हैं। और चौथी किस्म कौन सी है? जिस हमजा पे जज़म आए उसको हमजा साकिना बोलते हैं। हमजा साकिना कैसा पढ़ा जाता है? झटके के साथ पढ़ा जाता है। झटके के साथ पढ़ा, कभी भी बगैर झटके के नहीं पढ़ना। माशाल्लाह, बहुत अच्छे जवाब दिया आप हमारे ताबिश साहब। आपका होमवर्क भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे को मालूम। मोहम्मद खलील वानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम कितने किस्म के मद पढ़े? मद 6 किस्म के सर। कितने किस्म के मद पढ़े? हम इतने दिनों से मद पढ़ रहे थे ना, कितने किस्म के मद पढ़े? मद मुतसिल, मद मुंतसिल। मैं पहले मैं कितने किस्म के पूछ रहा हूँ यार, कौन से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नाम बताओ नहीं बोल रहा हूँ। 10, 15, 4, 6, 2, 1, कितने किस्म के मद पढ़े? 1, 2, 4 से पढ़ी सर। कौन से अब नाम बताइए। मद मुतसिल, मद मुंतसिल, मद आरजी, मद लीन आरजी। माशाल्लाह, वेरी गुड। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे आरिज, मद्दे लीन आरिज। मद लीन आरिज। अब बोलिए, दोबारा बोलिए, सही। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज, तो मद लीन आरिज। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोला। मद्दे मुत्तसिल किसको बोलते हैं? मद मुत्तसिल जिस पर जज़्म हो सर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला नहीं, हमजा सर, जिसका हमजा हो सर वो मद मुत्तसिल है। जिस पर नहीं, सनाउल्लाह साहब, जनाब सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। सनाउल्लाह साहब, ये बताइए मद्दे मुत्तसिल किसको बोलते हैं? मद मुतसिल जिसके ये हमजा होता है ना, मुतसिल उसी से कहते हैं। सही नहीं है ना जवाब? गलत है सर। सर जब एक ही हरफ पे आ जाए तो मद मुनफसिल हो गए। जब शर्त मद और सबब मद, शर्त मद यानी मद्दे असली, सबब मद हमजा ओरिजिनल शक्ल में आए एक ही कलमे में, तो जो है वो होता है मद्दे मुत्तसिल एक ही कलमे। उसके ऊपर मोटी मद डाली होती है, उसकी मकदार 4 हरकत है। ये इतना पूरा बोलने का है। इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कोई 10 दिन से मदाम पढ़ रहे हैं, अब कुछ भी नहीं। मद्दे मुनफसिल। अच्छा, दूसरे साहब पूछता हूँ मैं, जुबैर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले मद्दे मुनफसिल किसको बोलते हैं? सर मद्दे मुनफसिल वो मद होती है जिसमें शर्त मद और सबब मद अलग अलग हरूफ में आए। और क्या निशानी है उसकी? सर उसमें जो सबब मद होता है वो हमजा की शक्ल में होता है। और क्या निशानी है? सर और उसमें जो मद का जो ऊपर निशान होता है वो पतला होता है। उसकी मकदार कितनी है? सर इसकी मकदार 4 भी कर सकते हैं, मगर उसको मद मुत्तसिल से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम अगर उसको मद मुत्तसिल को 4 पढ़ेंगे तो उसको 3 ही पढ़ना है। अगर उसको परफेक्ट। हाँ, पहले आदमी है जो पूरे जवाब सही दिए, माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। सैयद परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मद्दे आरिज किसको बोलते हैं? मद्दे आरिज जी, आयत के आखिर में आयत के आखिर में अगर मद्दे आयत के आखिर में अगर मद्दे असली में से कोई आए तो उसको मद्दे आरिज कहते हैं। मद्दे आरिज कब होता?
मद आरिज आयत के आखिर में होता है। कब अगर होता है आयत के आखिर में साकिन करना हो तब मद आरिज कर सकते हैं। उसके अंदर शर्त मत क्या है? उसके पहले शर्त यही है कि उसमें मद असली होना चाहिए। वेरी गुड। और सबब कहां से आता है? सबब क्या है उसका? सबब यही है कि अगर हमने आयत को साकिन अगर आखिर में साकिन करना हो, हाँ, रोकना हो, तो वो सबब बनता है उसका। उसकी मकदार कितनी है? उसकी 6 अलिफ है। 6 रकत। मद्दे लीन आरिज का शरत क्या है? लीन आरज शर्त का मद भी ये मद लीन आरज का भी ये उसूल है सर। अगर आयत के आखिर में लीन वाला हरफ कोई आए तो वहां पे मद लीन आरज हो जाता है। माशाल्लाह। देखिए हम लोग ये जो अब तक जो सबक पढ़े गुज़िश्ता 1 महीने से, उसका एक रिवीजन था ये। इसमें जो है आप लोग बहुत से लोग जो है अभी तक कुछ समझ में उनके नहीं आ रहा, घर में जाके पढ़ रहे नहीं। मध्य हम क्या पढ़े? मध्य असली पढ़े। हम सबसे पहले जो है देखिए, हम सबसे पहले सर मैंने सुना या नहीं? सलाम अलैकुम। कि क्या है कि क्या बोले आप? मुझसे सुना या नहीं सर? हाँ, अभी पढ़ाए नहीं, अभी खाली सवालात कर रहे थे। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, सवालत नहीं किए सर। इंशाल्लाह करेंगे। अभी चल रहा सेशन, थोड़ा इंतजार करिए। हम जो है सबसे पहला सबक पढ़े हरकत सलासा। क्या पढ़े हम? हरकत सलासा। हरकत सलासा कितने हैं? ये जो अभी पूछे थे मेरे से, सवालात नहीं करे, बोलिए कितने हरकत सलासा? 3 है सर। क्या? 1 मिनट। हाँ, कितने बोले आप? 3 सर 3। एक कितने आदमी बोल रहे यार? एक आदमी बात करो ना, वो जो अभी बात कर रहे थे एक आदमी जवाब दे। और ये कौन से हैं? जेर जबर पेश। कितने आदमी जवाब दे रहे यार? सब माइक बंद कर। एक आदमी जिससे मैं पूछ रहा हूँ कौन है? वो सैयद मुश्ताक साहब बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी सर। अब ये बिलाल मजीद साहब माइक बंद करें। सैयद मुश्ताक साहब, हरकत सलासा के कितने हर्फ है? 3 है सर, 3। कौन से? जेर जबर और पेश सर। उसकी मकदार क्या है? 1 हरकत है सर, 1 काउंट। जेर का आवाज किधर जाता? नीचे को जाता है सर। पेश का आवाज किधर जाता? पेश के आगे को जाते हैं। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टे पेश की मकदार कितनी है? 2 काउंट है सर। 2 काउंट है। अच्छा, तजदीद माल तजदीद किसको बोलते हैं? तशदीद के बाद तजदीद सर, उसमें 2 तजदीद हो। हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी में क्या फर्क है? हुरूफ शम्सी में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है, हुरूफ कमरी में सर पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्यों पढ़ा जाता है? उसमें अलिफ वास्ली होता है बीच में, तो दूसरे में तजदीद होता है सर। हुरूफ कमरी का लाम क्यों पढ़ा जाता है? वो लाम पे जज़म होता है। जज़म होता है सर। वो लाम पे हमेशा जज़म होता है, इसलिए पढ़ा जाता है ना? जी सर। लाम पे हमेशा जज़म आता है, इसलिए पढ़ा जाता है। उससे पहले का अलिफ नहीं पढ़ा जाता, लेकिन लाम पढ़ा जाता है। और हुरूफ शम्सी में लाम नहीं पढ़ा जाता है ना? सीधा तजदीद में चले जाते हैं हमेशा, सीधा तजदीद में। और हमारे मुश्ताक साहब ये बताए हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? हुरूफ मुस्तालिया 7 है सर। कौन से? क़ाफ, साद, खा, क़ाफ, साद, खा, तीन, क़ाफ, साद, खा, तीन, साद, दाद, क़ाफ, साद, दाद, ता, ज़ा,
जा। जी सर। पूरे 7 हर्फ बताइए ना, आराम से बताइए। मैं आपको पेयर्स में बताया था, तोए, जोए, सौद, दौद, बहुत। खा और खौफ और गैन। गायन में गैन भूल गैन गया तो सर। बोला ही नहीं आप। गायन में भूल गया सर, सही है। गैन में गैन गायब हो गया, गैन से जी गायब, जी सर, इसीलिए गायब कर सॉरी दिया। सर। माशाअल्लाह। यानी आपको मुस्तारिया की हर्फ याद नहीं है तो अब अगर गैन आ गया कुरान पढ़ते वक्त में, तो आप पतला पढ़ेंगे मोटा पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे सर। कैसा पढ़ेंगे? आप तो बोले ही नहीं ना गैन बोल के, गैन तो आपको याद ही नहीं है ना। याद है तो पढ़ेंगे ना। हमको जी मोटे सर, जी। मोटे जुमला हर्फ कितने हैं अरबी जबान में? जी, अरबी जबान में जुमला कितने हर्फ, अल्फाबेट कितने हैं? अल्फाबेट 29 है सर। 27 27 28। 28 भी सही है, 29 भी सही है, क्योंकि अलीफ और हमजा एक ही काउंट करे तो 28 होता। अगर अलीफ को अलग काउंट करे, हमजा को अलग काउंट करे तो 29 होते। तो 28 भी सही है, 29 भी सही है ना? जी ये सर। ये आपका किसी दूसरे से पूछिए। आप माशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मालूम है। कोई दूसरे साहब से पूछते हैं। मुख्तार इकबाल साहब। मुख्तार इकबाल। मुख्तार इकबाल। यहाँ पे नाम आ रहा ना, फिर पे आप जवाब क्यों नहीं देते? यहाँ पे आप दिख रहे हैं। मैं आपको ये बताया था कि 28 हर्फों में 7 हर्फ मोटे पड़े जाने वाले हैं। 7 हर्फ जो है हेवी लेटर्स है, हरूफ मुस्तालिया, हेवी लेटर्स, हेवी लेटर्स। बाकी के 31 जो है लाइट वर्ड्स है, लाइट अल्फाबेट है, लाइट है। हरूफ मुस्तफिला, क्या बोलते हैं उसको? हरूफ मुस्तफिला, पतले पड़े जा रहे हैं। मैं आपको ये बताया था कि इसमें से 3 हर्फ कंडीशनली कभी कभी मोटे पड़ जाते हैं। इसका माइक खुला है यार, बंद करिए ना भाई, जरा बंद कर लीजिए ना। हाँ। दोन पाहिजे। भाई ये आपके घर के आवाज सुने आ रहे हैं, घर की मारामारी सुने आ रही है। आप बंद करिए ना। तारिक साहब और बिलाल साहब माइके बंद करो, आप बार बार खोलते हो। तारिक साहब और बिलाल साहब माइके बंद करो अपनी अपनी। इनके घर को जाके बंद कराना पड़ेगा जी। मैं ये बताया था कि 21 हर्फ जो पतले पड़े जाने वाले हैं, बारीक पड़े जाने वाले हैं, उसमें से 3 हर्फ ऐसे हैं जो कभी कभी कंडीशनली मोटे पड़े जाते हैं। वो बेसिकली पतले पड़े जाने वाले हैं, लेकिन कभी कभी मोटे पड़े जाते हैं। कौन से है वो 3 हर्फ? अलीफ, लाम, रा। माशाल्लाह। अलीफ, लाम, रा। ये कभी कभी मोटे पड़ जाते हैं। इनकी ये कैटेगरी पतले पड़े जाने वाली है, लेकिन ये कभी कभी मोटे पड़े जाते हैं। अलीफ कब मोटा पड़ जाता है? अलीफ मुस्तालिया के साथ आए तो मोटा पड़ जाता है, पतला पड़ने वालों के साथ आए तो पतला पड़ जाता है। जैसे ये सीन है, सीन के साथ आया उन्हें सा, अगर वो स्वाद के साथ आया सौ मोटा है ना। ये क्या है? सा मध्यस्थली हो रहा है। ये क्या है? सौ मोटा होता देखा, आवाज देखा, सौ है ना। ये है ज़ा,
ذا، اور یہ کیا ہے؟ یہ مستعلیہ کا ہے، یہ وا، تو یہ الف جو ہے پتلا پڑے جانے والوں کے ساتھ آئے گا تو پتلا پڑے جائے گا، مستعلیہ کے ساتھ آئے تو موٹا پڑے جائے، کیونکہ الف کو الگ نہیں کر سکتے، وہ حرف کو موٹا پڑتے وقت قولا گھڑی گھڑی آتا قرآن میں آپ کو بتایا، قولا، قالا کے معنی کہا، قولا اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول نے کہا، نبی نے کہا، قوم نے کہا، میں نے کہا، آپ نے کہا، قولا، قولا معنی کہا، بولنا. تو یہ خا کیسا پڑھیں گے؟ پتلا نہیں کریں گے ہم لوگ سب کیسا پڑھتے ہیں؟ خالہ، وہ خالہ خالو نہیں ہے، خو، گول منہ کر کے پڑھنا، اس کو موٹا کر کے پڑھنا، قولا، قولا. میں آپ کو جو ہے 7 حرف میں سے 3 حرف موٹے پڑھے جانے والے بھی بتایا تھا، سوری بلند پڑھے جانے والے بھی بتایا تھا. 4 حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں، 3 حرف بلند پڑھے جاتے ہیں. میں آپ کو کیٹیگری بھی ڈال کے بتایا تھا. آپ کو یہ سب یاد رہنا چاہیے، ہے نا. یہ 3 بلند پڑھے جانے والے حرف کون سے ہیں؟ یہ 3 بلند پڑھے، اونچے پڑھے جانے والے، بلند پڑھے جانے والے حرف ہے خوف، خا اور غائن. یہ ہمیشہ اٹھا کے پڑھنا، اس کی اٹھان بہت مشہور ہے. غائب، خالا، خالدون، خالا، خا، بہت اونچا ہے یہ، لمبائی میں مشہور ہے، یہ اٹھان میں مشہور ہے، یہ 3 حرف. اور یہ 4 حرف جو ہے بہت ہی موٹے ہے، بھاری جسامت والے ہیں، موٹے ہیں. وہ لوگ بلند ہے، وہ لوگ لمبے ہیں، یہ لوگ موٹے ہیں، ہے نا، چوڑے ہیں. کون سے یہ باقی کے ساتھ، باقی کے 4 توئے، زوئے، سواد، دواد، یہ 4 جو ہے موٹاپے میں مشہور ہے. جب بھی پڑھے موٹے پڑھنا اس کو قرآن میں. اور یہ 3 جب بھی پڑھے اٹھا کے بلند پڑھنا، اس کا استعالہ بولتے، بلندی کو استعالہ، سوری. استعالہ، الف سین تا عین، استعالہ، استعالہ، استعالہ نے بلندی، بلندی مشہور ہے کہ یہ 3 حرفوں کی، یہ 3 حرف جو ہے بلندی میں مشہور ہے، استعالہ ان کی بلندی مشہور ہے. یہ 4 حرف موٹے پڑ جانے والے، ہیوی ورڈ سے، بہت بھاری جزامت والے. اوتو، اوف، 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 ہمیں جب پڑھیں گے تو بہت موٹا آواز نکلنا. اب ہم جو ہے اب ہم جو ہے مخارج پڑھنے والے ہیں، تو میں آپ کو پورے اس کی کون سا حرف کیسا پڑھا جاتا، اس کا مخرج کیا ہے، وہ بھی ابھی ہم پڑھنے والے ہیں ایک سبق کے بعد. چلے یہ نمبر 2، یہ ہے نمبر 2 ہے لام. الف کا معلوم ہو گیا آپ کو، لام کا، یہ لام جلالہ میں موٹا پڑے جاتا، وہ اگر زیر ہے تو انہیں بھی پتلا پڑ جاتا، صرف زبر اور پیش ہے تو موٹا پڑ جاتا. کنڈیشنل ہے لام کی. یہ لام بیسیکلی پتلا پڑے جانے والی کیٹیگری کا ہی ہے، لیکن اللہ کے نام میں جو لام ہے وہ کنڈیشنلی زبر اور پیش ہے تو موٹا پڑ جائے گا. ادروائز قرآن کے تمام لام باریک پڑ جائیں گے. قرآن میں جتنے لام ہیں وہ سب پتلے اور باریک پڑ جائیں گے. اب رہ گیا را. الف پڑھ لیا، کب موٹا پڑھنا ہے. لام پڑھ لیا، کب موٹا پڑھنا ہے. را کو کیسا پڑھنا ہے، یہ جو ہے مستقل ایک چیپٹر ہے. یہ اس کو بولتے ہیں احکام را، یعنی را کے احکام. یہ را میں الف لام نہیں پڑھا جاتا، لیکن لکھتے اس کو الف لام سے. احکام را یعنی را کو موٹا پڑھنے کے پتلا پڑھنا ہے، کہاں پہ پتلا پڑھنا ہے، کہاں پہ موٹا پڑھنا ہے، اس کے احکام ہے یہ. ہم اتنے دن سے مد کے احکام پڑھ رہے تھے، مد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور 4 مد ہم پڑھے اور اچھی طریقے سے خوب پریکٹس کرے، لکھے. لیکن آج میں پوچھا تو تقریباً لوگ جواب نہیں دیے. کیا فائدہ اتنی محنت کرے ہم لوگ. شرط مد معلوم ہونا آپ کو کیا رہتا، سبب مد معلوم رہنا،
सबब मत कितने हैं मालूम होना, कौन से है मालूम होना। सबब मत दो है, हमजा और जज़म। हमजा से बनने वाले दो मत पढ़े हम, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल। किसको बोलते हैं, क्या है, कितनी मकदार है उसकी खींचने की, हर आदमी को मालूम होना चाहिए। आप जाके रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग सुन के समझ सकते हो। आप सीरियस होना जरूरी है उसके लिए। आपको कोई आपको पकड़ के तो नहीं सुनाएगा ना, गर्दन पकड़ के, तो आपके शौक पे मुनहसिर है। तो आप रिकॉर्डिंग है हर दिन की। तो मद्दे मुनफसिल किसको बोलते हैं, है ना, उसमें हमजा जो है अलीफ की शक्ल में रहता है हमेशा। उसके बाद हम पढ़े मद्दे आरिस, आयत के खत्म पे रहता है, और जज़म उसका सबब है जो हम लगाते हैं। मद्दे लीन आरिस, लीन शर्ते मद लीन रहती है उसमें, और फिर रोकने के लिए जो जज़म लगाते हैं वो सबब रहता है। ये 4 सिंपल मत पढ़े हम, 4 बिल्कुल सिंपल, और कुरान में यही 4 भरे हुए हैं। इसके बाद जो 4 पढ़ेंगे वो रेयरली आते वो, लेकिन ये जो 4 हम पढ़े ये तो हर लाइन, मद्दे आरिस तो हर आयत में रहता कंपल्सरी, तकरीबन पूरे कुरान में। कहीं कहीं खाफिया दूसरा रहता, खड़ा जबर या मद्दे असली या 2 जबर की तरह, बाकी सब जगह आपको मद्दे आरिस होता। मद्दे लीन आरिस वो 0.001% है पूरा कुरान में, तो उसका कोई इतना वो नहीं है ना। तो हम इतने दिनों से क्या पढ़े, 4 मत पढ़े। आप अच्छे तरीके से मदों के सबक को समझिए, रिकॉर्डिंग सुन के समझिए, जाके घर में देखिए। मैं जो बताया, मैं एक 50 आयतों को लेके करो वाला नहीं करे, आप लोग करे तो समझ में आता ना, शरत किसको बोलते, सबब किसको बोलते, समझ में आता। पूछे तो कुछ भी, यानी 10 आदमी में सिर्फ 2 आदमी जवाब दिए, बाकी के 8 आदमी जो है नहीं बोल सक रहे, या तो फिर वो है जहन में लेकिन बोलने नहीं आ रहा, आई डोंट नो, एनीवे नहीं बोले उन्होंने। तो हर आदमी को फटाफट जवाब देना पूछते ही, क्योंकि पढ़ के आ रहे हैं, कोई ऐसा सबक नहीं पूछ रहे जो नहीं पढ़े, इतने दिनों से पढ़े। खाली क्या याद रखना है, हर जितने बड़े मद है उसके अंदर 2 पार्ट है, 2 कंपोनेंट है, 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा शर्ते मद बोलते हैं, शर्ते मद हमेशा मद्दे असली रहता है ना, मद्दे असली नहीं रहा तो खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश रहता, उसकी भी 2 हरकत है। सिंपल है। सबब में जज़म हमजा आ गया तो मद होता है ना, एक कलमे में रहा तो मुत्तसिल रहता, 2 कलमों में आया तो हमजा अलीफ की शक्ल में। तो पूरा वैसी मद्दे आरिस है, मद्दे लीन आरिस है। आई टेक एज ग्रांटेड कि सब जने जो है कर लेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। सब लोग जो है जाके रिकॉर्डिंग सुनेंगे या कुछ भी करेंगे, कि अपने ग्रुप में किसी से बात करके समझेंगे या खुद से समझेंगे। मैं आई एम कंसिडरिंग कि आप लोग सब समझ गए हैं, मैं आगे जा रहा हूँ। आगे जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो तीसरा कंडीशन है वाला लफ्ज है अलिफ लाम रा, मैं आज रा पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सबकों में थोड़ा बारीकी आते जा रही है, थोड़ा टेक्निकल होते जा रहे लेसन हमारे। तो अगर आप पहले के सिंपल को नहीं समझे तो बाद में क्या आपके लिए और मुश्किल होते। तो एनीवे, रा को जो है, रा को 2 तरीकों से पढ़ते हैं, मोटा और पतला। ये तो है पतला पढ़ने की कैटेगरी वाला ही, लेकिन कब मोटा पढ़ते वो भी देखना है हमारे, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मोटा कब पढ़ना है और पतला कब पढ़ना है। रा को मोटा कब पढ़ना है और रा को पतला कब पढ़ना है, मोटा कब पढ़ना है और पतला कब पढ़ना है ना। सबसे आसान है ये मोटा पतला बोले तो समझ में आया था। मैं तफखीम और तरखीक बोला तो जरा मुश्किल दिखता है, इसलिए मैं आपको आसान बनाने के लिए बोल रहा हूँ। मोटा पढ़ने को बोलते तरखीक, सॉरी, मोटा पढ़ने को बोलते तफखीम और पतला पढ़ने को बोलते तरखीक, है ना, तरखीक। मोटा कब पढ़ना है, मोटा माने पुर पढ़ना, भारी पढ़ना, ढा के पढ़ना, मोटा पढ़ना, है ना। मोटा कब पढ़ना है, पतला कब पढ़ना है, किसको, रा को। अहकाम में रा चल रहा हमारा, यानी रा को कैसा पढ़ेंगे, कुरान में रा आया तो कैसा पढ़ेंगे, ये सबक है हमारा। पहली कंडीशन
आप लोग सुन के जहन में बिठाइए, कॉपी में नोट करिए, जो करना है करिए। पहली कंडीशन मोटा पढ़ने की, जब भी रा पे जबर रहेगा या पेश रहेगा, जब भी रा पे जबर रहेगा या पेश रहेगा, रा मोटा पढ़ेंगे। कुरान में अगर रा पे जबर है या पेश है, रा मोटा पढ़ेंगे। समझ गए? जब भी रा पे पतला पढ़ने की पहली कंडीशन, जब भी रा पे जेर रहेंगी पतला पढ़ेंगे। जब भी रा पे जेर रहेंगी पतला पढ़ेंगे। मैं जो है कल रात में दुबई से ट्रैवल करके हैदराबाद आ गया। कल पूरी रात ट्रैवल कर रहा था मैं। 6 बजे सुबह फजर की नमाज चल रही थी, अभी 10 मिनट पहले मैं पहुंच गया यहाँ पे। तो कल शाम में मैं 8 बजे रिपोर्टिंग करा, उसके बाद होते 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 लेट हुई फ्लाइट। इतनी तेजी से मैं घर को आया कि क्लास के टाइम से पहले मैं घर को पहुंच जाऊं। मैं जो है 15 मिनट 20 मिनट पहले आके, 45 मिनट पहले आके जो है क्लास शुरू करा। पूरी रात सोया नहीं मैं। हाँ, और मैं पूरी यही फिक्र थी कि आज मेरी क्लास ना छूट जाए, कहीं अगर वो सामान लेट आया या एयरपोर्ट पे टैक्सी नहीं मिली है। बहरहाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया और आपकी क्लास भी ले रहा हूँ। तो आप भी जो है पूरी जुस्तजू से, पूरे इंटरेस्ट से, पूरा जहन पूरा लगा के सबक सीखिए, और फिर आप ये सीखे तो आप कुरान सही पढ़ सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? अहकाम में रा पढ़ रहे हैं। अहकाम में रा कैसा पढ़ना? कुरान में जब भी रा आएंगी हम कैसा पढ़ेंगे, ये सबक सीखेगा हमारा। सबक क्या करना है? पहली कंडीशन क्या है? जब भी रा पे जबर रहेंगे, रा मोटा पढ़ेंगे, मुंह भर के पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे या पेश रहेंगी। जब भी रा पे जेर रहेंगी पतला पढ़ेंगे। मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है, रब्बा, रब्बा, रा 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 मोटा पढ़ना, गोल मुंह से भारी पढ़ना। रा पे जबर है, रब्बा। बा पे भी सख्ती है क्योंकि तजदीद है, 2 बा है, एक साकिन एक बा पे जबर है। रब्बा 2 बार पढ़े जा रहा हूं, इसीलिए उसके अंदर जो है घसे जा रहा हूं। एक बार रुक जा रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, एक बार एक्सीलेटर दे रहे हैं। रब्बा, रब्बा, है ना? तो रब का रा जो है मोटा है, हमारा रब जो है बहुत सॉलिड है ना? ऐसा ढीला नहीं है, हमारा रब स्ट्रांग है। रब्बा, हाँ? रब्बी, हाँ? रब्बुका, रब्बाना। जितने रा है रब के, जबर ही है उसमें, और रा मोटा पड़ जाना, मुंह भर के पढ़ना रा को, है ना? पेश है, पेश है तो कैसा पढ़ना? मोटा पढ़ना। कैसा मोटा? कैसा पढ़ेंगे? देखिए, रुबामा, 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 रो रो। पावर रहना आपके रा में, क्योंकि पेश है। हाँ? आवाज फॉरवर्ड जा रही, जबर की ऊपर जाती है, पेश की फॉरवर्ड। रुबामा, समझ गए ना? अब इधर आ जाइए, रा पे जेर है, पतला पड़ी है, लाजमी बात है, क्योंकि जेर का आवाज नीचे जाता, जेर का आवाज नीचे जाता, नीचे गया तो उठेगा कैसा आवाज? लॉजिक है उसके अंदर, वैसे ही समझ में आ जा रहा। रिजाल, रिजाल, रिजाल किसको बोलते हैं? मेल, है ना? एक निसा एक औरत रहती, एक मर्द रहता है, मेल फीमेल, है ना? मेल, रिजाल, री री री। जब भी जेर से आएगा रा कुरान में, आपका एकदम टोन डाउन कर लेना, टोन डाउन कर लेना, क्योंकि जेर है। रिजाल, रिजाल। अब आपको समझ में आ गया कि कब कब हमको जो है मोटा पढ़ना है और कब पतला पढ़ना है। जब भी कुरान में रा पे जबर या पेश रहेंगी, हम रा को मोटा पढ़ेंगे। जब भी रा पे जेर रहेंगी, हम पतला पढ़ेंगे। सिंपल है ना? एक मिनट है।
आवाज नहीं आ रही हजरत? वो मैं आपको जरा ठहरो बोला था ना, जी या बगैर सांस लिए पढ़ाते रहना, क्या तो भी आना। जी, माफी चाहता हूँ फीस लेना पड़ेगा आप लोगों को। इंशाल्लाह हजरत। फीस बोलते हालत खराब होगी। जी, मैं आपको थोड़ी मिसालें और भी दे देता हूँ। अब देखिए, रहमान, रहमान, रा पे जबर है। अब बहुत सी मिसालें हैं, वो पूरा कुरान बड़ा हुआ, रसूल है ना, रफा, रब्बुका, पूरे रा पे जबर। रुबामा, रुफियत, रूहुन, रुशदन, पेश पेश आया तो मोटा, जेर आया तो पतला, सिंपल। जेरा तो रिसालाती, रिसालाती, रीहुन, रिजसुन, रिजवानुन, जहां जहां जेर है पतला, समझ गया ना, है ना। एक मोटे का कालम चल रहा है, एक पतले का कालम चल रहा ना। ये मैं इसको लंबा कर रहा हूँ क्यों। अब कंडीशन नंबर 2 बताता हूँ यहाँ पे। अब कंडीशन नंबर 2, पहली कंडीशन क्या बताया था मैं, रा पे जबर या पेश है तो मोटा, और रा पे जेर है तो पतला। अब ये दूसरी कंडीशन ये है, आप लोग और से सुनिए। रा साकिन है, रा साकिन है, जज़म है रा पे। अब क्या करना है, ना जबर है ना पेश है ना जेर है, साकिन है, उस पे जज़म है, सुकून लगा हुआ है। जब भी रा साकिन आएंगी, जब भी रा साकिन आएंगी, तो अब आप क्या करना, आप उससे पहले वाले हर्फ को देखना, उससे पहले वाले हर्फ को देखना है, उससे पहले वाले हर्फ को, आगे वाले नहीं। एक साहब जो है आगे वाले हर्फ से मिलाते करते हैं जज़म को, क्या यार। तो उससे पहले वाले हर्फ को देखना, और उससे पहले वाले हर्फ पे अगर जबर है या पेश है, वो रा मोटी पड़ी जाएगी, समझ गए आप। जब भी रा साकिन है तो हम फौरन उससे पहले वाले हर्फ पे क्या है देखना, जबर है या पेश है। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं। और सला, और सला कैसा पढ़ेंगे, और रा को पावर कौन दे रहा है, अलिफ पे का जबर दे रहा, और सला, और सला, रा साकिन है लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पे जबर है, इसीलिए उसको मोटा पड़ रहा है ना। उसी जमीन में और एक बता दूं, युरसला, इतने से आ गया वो। तुरजाऊ, ये अच्छा है, तुरजाऊ, तुरजाई, कई कई उसमें आता है, तुरजाई, सॉरी जाई, जेर नहीं है, बस जेर को नहीं हटा देता, तुरजाई, है ना। तुर, रा मोटा क्यों पड़ रहा है, तापे पेश है बोल के, तापे पेश है बोल। अलिफ के भी, अलिफ की और एक मिसाल बता दो, सॉरी जबर की एक मिसाल, ये बहुत कॉमन मिसाल है, ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत नाम आता, आप इसको अच्छा पढ़ना, कुरान में आया तो, कुरान में आया तो आप इसको अच्छा पढ़ना। कैसा, मौर्यम, मोर, राम मोटा क्यों पढ़ रहा है, मीम पे जबर है बोले। मरियम ने, हम लोग उर्दू वाले क्या करते, तो मरियम उर्दू पढ़ते, उर्दू क्या सन, मोर, मौर्यम, राम मुंह भर के पढ़ना, क्यों, रा साकिन से पहले मीम पे जबर है, मौर्यम, यर्दा, अल अर्दू, इसमें बहुत आते तुर्जो, है ना। अब पेश के भी बहुत आते हैं, और भी, जैसे आप एक खास आपको बता रहा हूं, कुरआन, अलिफ पे खड़ा जबर है, कुरआन, कुर, पतला नहीं पढ़ना ये रा को, क्यों, हाफ पे पेश है, कुरआन, कुरआन, है ना।
पेश है। तो ये आपको मैं क्या करा, रा पे जज़म है और उससे पहले वाले हर्फ पे ज़बर है, रा साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पे पेश है। आपको मिसालें बताया, मोटा पढ़ेंगे, अगर रा साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पे ज़बर है तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा, रा साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पे पेश है तो रा मोटा पढ़ा जाएगा, है ना। ये मोटा पढ़ने की दूसरी कंडीशन बता दिया मैं आपको, बताया ना, मोटा पढ़ने की दूसरी कंडीशन बताया। आपको मैं पतला पढ़ने की भी दूसरी कंडीशन बता देता हूँ, है ना, ताकि आपको पतले का भी मालूम हो जाए। रा साकिन है, रा यहाँ पे भी साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पे जेर है, ये रा पतली पड़ जाएगी क्योंकि उससे पहले वाला जेर उसको गिरा देगा, है ना, उसको वो कर देगा। अब इसकी एक मिसाल जो कुरान में बहुत कॉमन है वो है ना, फिर आउना, फिर फा का जेर उसको कमजोर कर दिया, फिर आउना, फिर आउना, आउना में लीन है, वाव साकिन से पहले ऐन पे जबर है, फिर आउना, आउ आउ, फिर आउना। इरा कैसा पढ़ेंगे, पतला पढ़ेंगे, क्यों, जेर है पहले। आप देखिए अल्लाह ताला यहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम को के रा को अल्लाह ताला मोटा रखा और फिरौन के रा को अल्लाह ताला पतला कर दिया। दुनिया में भी पतला होने, आखिरत में भी नुकसान में है नहीं। फिर आउना, फिर आउना, मिरियतुन। अब इसके तो बेहिसाब आपको मिल जाएंगे, शिरक, शिरक, शिरकुन, जेर है नहीं, शिरकुन। और भी उसके बता सकता हूं मैं। आपको वो हो गया, अंदाजा तो हो गया कि कैसा हमको क्या करना है। जब भी रा साकिन है हम देखना उससे पहले क्या क्या हर्फ पे क्या है, उसके लिहाज से रा को डिसाइड करके सही पढ़ना मुंह भर के। रा जो है, बाज लोग बाज किताबों में बाज पढ़ाने वाले क्या करते हैं, हुरूफ मुस्तालिया 8 है बोल के रा को मुस्तालिया में डाल दिए, मगर पतला भी तो पढ़ा जाता है, कभी कभी मोटा पढ़ा जाता है, वो बेसिकली पतला पढ़े जाने वाली कैटेगरी का है वो, है ना। हाँ, जबर और पेश है तो मोटा पड़ जाता है। देखिए मैं आपको बता दिया, 2 कंडीशन बता दिया, अब तीसरी कंडीशन बता दो। तीसरी कंडीशन, मोटा पढ़ने की तीसरी कंडीशन और इधर पतला पढ़ने की भी तीसरी, दोनों एक साथ साथ का साथ बता दो। हम अभी क्या पढ़े, रा साकिन रहेगा तो कैसा क्या करना। रा साकिन है तो हम पहले वाले हर्फ को देखना, रा साकिन है तो हम पहले वाले हर्फ को देखना, और अगर रा है ना साकिन है हम उससे पहले वाले हर्फ को देखना। और अब क्या है यहाँ पर, ये तीसरी कंडीशन में क्या है, हम क्या करें, रा साकिन है तो पहले वाले हर्फ को देखें, पहले वाले हर्फ को देखें तो उन्हें भी साकिन है, उन्हें भी साकिन है। अगर उन्हें भी साकिन है तो आप तीसरे हर्फ पे देखना जबर है या पेश है। पहले तो एक रा साकिन है तो हम उससे पहले वाले हर्फ को देखें, उन्हें भी साकिन निकला तो हम तीसरे हर्फ को जाके देखें यहाँ क्या है। तीसरे हर्फ अगर वहां जबर या पेश है तो ये रा मोटी पड़ जाएगी, ये रा कब मोटी पड़ जाएगी, ये जब यहाँ पे जबर या पेश हो। मिसाल के तौर पे इसके भी बेहिसाब मिसालें हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, रा साकिन थी तो हम जीम पे देखे क्या है, जीम भी साकिन निकली, जीम पे भी जज़म है। हम शीन को गए, तीसरे हर्फ पे जाके देखे तो जबर था, शजर, शजर, रा मोटा पड़ेंगे इसका, और जीम पे खलखल सोगरा भी करेंगे, शजर, पतला नहीं करेंगे रा को मोटा पड़ेंगे, शजर, है ना। आप देखिए मैं बेहिसाब इसके भी मिसालें बता सकता हूँ।
सहर, सहर है ना, सहर मोटा पढ़ेंगे है ना। इसके फजर, फजर फजर का टाइम सुबह का, फजर जिम पे खलखले सोहरा करेंगे, रा को मोटा पड़ेंगे, फजर जिम पे जो है खलखला करेंगे, रा को मोटा पड़ेंगे, फजर, फजर है ना। बहुत से बता दिया मैं आपको। एक समंदर को बोलते हैं, समंदर को क्या बोलते हैं, बहार, बहार। रा भी साकिन है, उसके पहले वाला हर्फ भी साकिन है, तीसरे हर्फ पे जबर है। आपको और कर रहे होंगे है ना। अब पेश का भी एक बता दो, बहुत हो गया। खुसर, खुसर सीन भी साकिन है, रा भी साकिन है, मोटा पढ़ेंगे रा को, क्यों, तीसरे हर्फ पे पेश है, तीसरे हर्फ पे पेश है इसीलिए है ना, तीसरे हर्फ पे पेश है इसीलिए। अगर अगर जो है ये आप जबर के भी देख लिए और जेर के भी देख लिए है ना, जबर के भी देख लिए आप, जेर के भी देख लिए। मैं आपको पेश के भी बता देता हूँ, पेश में सॉरी जेर के भी बता देता हूँ। जेर में क्या है, आप देखेंगे, आप देखेंगे इसमें जो है ये इसके भी, ये किधर से लेगा, हाँ ये इसको कंटिन्यू कर। इसमें जो है रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है, तीसरे हर्फ पे जेर है, रा पतली पड़ेंगे। हम क्या करें, रा साकिन थी तो उससे पहले वाले को देखे, उससे पहले वाला भी साकिन निकला, उसमें भी जज़म था। तीसरे हर्फ पे देखे जेर है, जेर है तो पतला पड़ेंगे, जैसे शहर, यह सीन के नीचे है ना, शहर जादू को बोलते हैं, सहर जो है वो मॉर्निंग, शहर। हिजर, हिजर ये रा साकिन है, ये जीम साकिन है, जीम पे खलखला भी होगा, रा पतली पड़ जाएगी क्योंकि हा पे जेर है ना। विजर, सिर, इसके भी बेशुमार है, लेकिन आपको तरकीब समझ में आ गई। अगर रा साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ को देखना, अगर वो भी साकिन है तो तीसरे हर्फ को देखना, तीसरे हर्फ को देख के जेर है तो रा मोटी पड़ेंगे, जबर या पेश है तो रा मोटी पड़ेगी। आपको मैं मिसालों के साथ समझाया। ये सबक जो है मध्य असली नहीं मालूम हुआ अभी तक लोगों को, एक महीने में लीन के अल्फाज नहीं बोल सक रहे, मुस्तालिया नहीं बोल सक रहे, अभी तक एक महीने से मुस्तालिया पढ़ रहे हैं। तो कैसा हम आगे कैसा बढ़ेंगे और मुश्किल चीजें कैसा कोप अप करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो 5-6 आदमी जो अच्छा पढ़ने वाले फ्रंट बेंचेस वाले हैं वही लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, वो बैक बेंचेस वाले अभी तक जिंदगी भर बैक बेंचेस पे ही है। कुरान में भी बैक बेंचेस पे ही है, दुनियावी तालीम में भी वही हाल था, दीन में भी वही हाल है। मेहनत करो, बैठ के सबक पढ़ो घर में, जवाब कुछ पूछे तो जवाब देने के काबिल रहो। आप अगर जवाब सही देंगे तो कुरान में सही पढ़ेंगे ना, अगर मालूम है तो आपको। ठीक है, तो ये आज का सबक था। मैं अब इसको लंबा नहीं कर रहा हूँ, लंबा करे तो क्या होता। अब इसके जो है मोटा पढ़ने के कोई 6-7 कंडीशन है, 3 ही बताया मैं आपको भी। अब ये 3 आप करिए, मैं बाद में और भी दूसरे बताऊंगा, वो थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बाद में बताऊंगा। ये सिंपल वाले बता दिया 3। सिंपल क्या है, रा पे जबर या पेश है तो रा मोटा पड़ेगी, रा पे जेर है तो पतला पड़ेगी, रा साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश है तो मोटा पड़ेगी, रा साकिन है उससे पहले वाले हर्फ पे जेर है तो पतला पड़ेगी।
तीसरी कंडीशन रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है, तो तीसरे हर्फ को देखेंगे, जबरिया पेश है तो मोटा पड़ेंगे। पतला पढ़ने वाली में रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है, तीसरे हर्फ पे जेर है, पतला पड़ेगी। आपको कोई सवाल करना है तो करिए, आपको समझ में आ गए पूरी चीजें? एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। क्या आवाज ही नहीं आ रही किसी की? मेरी आवाज आ रही है आप लोग? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज सुनी आई? लेसन सुने आया क्या? कट गया था बीच में से? नहीं सर, पूरा सुने फिर क्या आवाज आ रही आवाज। पूछे तो सन्नाटा था, इसलिए बोल। जी क्या पूछना चाह रहे थे आप? जी अगर इसमें ये रब्बा है ना, रब्बा जी, रब, अगर रब भी आएगा फिर कैसे पढ़ना है? भाई रा पे जबर है तो मोटा पढ़ो बोल रहा हूँ यार, बाद में कुछ भी रहने तो बाद में रा पे क्या है यार? रा पढ़ना सीख रहे या कोई और चीज पढ़ना सीख रहे? रा के बारे में बात हो रही बस। अच्छा नहीं, हम रा पढ़ना सीख रहे ना। रा पे जबर है, रा मोटा पढ़ेंगे, उसके बाद उसके साथ क्या 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 है वो आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे, वो एक अलग चीज है वो। ठीक है हाँ, रा कैसा पढ़ना है? रा पे जबर है, रा मोटा पढ़ेंगे। रा तो मोटा पढ़ना है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई सही किस्म का सवाल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अगर हम लास्ट में जब आयत के उधर आएगा सर, जस्ट लास्ट वाली कंडीशन हमने देखी शज्जर, हाँ, तो उस वक्त हम साकिन करेंगे रा को, उस वक्त भी अप्लाई होगा सर क्या? साकिन कर देंगे तो हम देखेंगे उससे पहले क्या था, रा को कैसा पढ़ना है सोचना है हमको। साकिन कर दिया आपको, उससे पहले देखे तो जीम भी साकिन था, शीन पे जबर है, मोटा करके मोटा पढ़ के रोकेंगे, मोटा करके रोकेंगे। शजर, अगर शजरा मिसाल के तौर पर होगा शजरा, फिर हम साकिन करेंगे सर, उसमें उस वक्त भी रा मोटा पड़ेगा सर? जी बिल्कुल मोटा पड़ेगा, वो जबर उसको पावर देगा। ठीक, रोके तो ही बोल रहा हूँ मैं, साकिन है तो ही मोटा पड़ो बोल रहा हूँ। ठीक सर। हम वही तो देख रहे हैं, रात साकिन है तो क्या करना, कब मोटा, रात साकिन है तो कब मोटा पड़ना, तो जब उससे तीसरे हर्फ पे जबर है तो मोटा पड़ना। सहर, फजर, खुसर, बहर, है ना, सिहर, हिजर कैसा रा मोटी होती? हिजर में बोला हिजर, पतला हो गया ना, हाथ का जेर उसको खा गया। जी सर। नो क्वेश्चंस? ओके। कल का होमवर्क अटेंटिव रहिए एकदम क्लास में एवरीबडी। अगर कोई क्लास सवाल है तो अभी कर लीजिए। मैं आपको एक सूरा बता देता हूँ, कल आपका होमवर्क है, सूरा पढ़ के रात अच्छी करके आना। ये तीनों कंडीशनों को अच्छा खंगाल के भी आना, ये तीनों कंडीशनों को अच्छा समझ के खंगाल के आना, समझ गया ना? ओके, मैं आपको एक सूरा बतौर होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप ये घर में प्रैक्टिस करके आइए। मैं उसमें से पढ़ाना चाह रहा था, उसके अपने कुरान में से पढ़ा जो अच्छा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये इसमें से पढ़ा सकते इसलिए निकाल रहा हूँ। बहुत चीजें पढ़ना है, बहुत चीजें सीखना है, अभी बहुत काम बाकी है। आप लोग मेरे को वो नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 2-3 आदमियां अच्छा पढ़ रहे हैं, 4-5 आदमियां, सब लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। सब लोग मेहनत करिए, मौके का फायदा उठाइए आप। देखिए ये सूरा मैं पढ़ रहा हूँ, और रा को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हम रा का सबक पढ़ रहे हैं। रा कैसा पढ़ना है की प्रैक्टिस करना है हमारे को। ये आज का सबक हमारा रा का है, अहकाम रा के ऊपर आप फोकस करिए, रा को टारगेट करिए और सुनिए सूरे को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रा पे जहां भी जबर आया तजदीद के साथ आया तो और भी अच्छा पढ़ना।
الرحمن الرحیم. سمجھ گیا نا؟ علم نشرح لك صدرك. خلخلے صحیح رہنا اور ہر چیز صحیح رہنا، بہت ہی ناپ تول کے کرنا ہر کام. علم نشرح لك صدرك، دال پہ خلخلہ، صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. اسری یہ را پتلا زیر ہے، اسری یسرا. ان مع العسر یسرا. اسری بولتے ہیں تنگی کو، یسرا بولتے ہیں راحت کو. یعنی اللہ میاں کیا بول رہے ہیں؟ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر مشکل کے بعد راحت ہے. اور ایک بار نہیں بول رہے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آپ کے پاس کتنے بھی مشکل حالات رہنے دو، آپ تھوڑا صبر کریں تو تھوڑے دنوں میں پھر آپ بہت جو پریشان رہتے آپ کی پریشانی دور ہو جاتی، آپ پھر بحال ہو جاتے، پھر حالات اللہ تعالیٰ پھر حالات صحیح کر دیتے ہے نا. آپ کو یعنی جھیلنے کا وہ ہو جاتا، پریکٹس ہو جاتی. آپ تھوڑا صبر کرنا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. کیسا بھی آپ کا یقین اتنا پکا رہنا، آپ کتنا بھی پریشان رہو، آپ مطمئن رہنا، بولنا میرے کو اس کے بعد پھر آسانی آنے والی ہے بولے. اللہ تعالیٰ بولے غلط ہو ہی نہیں سکتا، قرآن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا صبر کرنا ہے بس. ہر تنگی کے بعد آسانی، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں دو بار پلٹا کے بول رہے ہیں. تو ہر آدمی جو ہے اپنے حالات پہ جو ہے مایوس نہیں ہونا، اپنے حالات سے گھبرانا نہیں، اپنے حالات کا مقابلہ کرنا. کیوں؟ بدلنے والے حالات. اللہ تعالیٰ بولے غلط ہو سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پر انہیں ہی ہے حالات کو ٹھیک کرنے والے. انہیں بول رہے تھوڑا صبر کرو، ہر تنگی کے بعد راحت ہے، آسانی ہے. ہر مشکل، ہر پریشانی کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے پھر یعنی راحت ملے گی. فَإِذَا، اچھا اپنا مضمون چلے گا، مانو میں کہا کہ مضمون کا ہم را کی پریکٹس کریں. اچھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. را کیسا پڑھ رہا ہوں میں؟ ایک زبر گرا کے مد اصلی کر رہا ہوں، را کو موٹا پڑھ رہا ہوں، 2 حرکت مد اصلی ہے وہ. یسرا، ان مع العسر یسرا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فرغت، را بھی موٹا، غین بھی موٹا، غین مستعلیہ کا ہے، را پہ زبر ہے موٹا. فرغت فانصب، با پہ خلخل کبرا. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. سمجھ گیا؟ را موٹا، باپ سختی سے تشدید ہے، را موٹا، را ساکن ہے. تو ہم پہلے والے کو دیکھیں، الف بھی خالی تھا، پھر فا کو دیکھیں، فا پہ زبر ہے، را موٹی ہو گئی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کیسا پڑھنا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہو گیا را کیسا پرفارم کرنا ہے. را کا بڑا میجر رول ہے ریسیٹیشن میں. را آپ اچھا رہیں گا تو قرات بہت زبردست دکھتی ہے آپ کی. را کو منہ بھر کے پڑھنا، پر پڑھنا، زبریہ پیش ہے تو. اب یہ چھوٹا سورہ ہے، آپ کیا کریے سورے میں اپنے را کو صحیح کریے، کل گھر میں بیٹھ کے پڑھیے، انالائز بھی کریے. اب ایک کالم بنائیے، احکام را کا ایک کالم بنائیے، موٹا پڑھنے کا ایک، پتلا پڑھنے کا ایک. دیکھیے یہ آیت میں کتنے را موٹے آئے، کتنے پتلے آئے، ہر آیت ویسی انالائز کریے، ہے نا. کالم ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. اب تک کتنے کالم ایڈ کر دیا آپ؟ 3 مد کے 3 کالم ایڈ کرے، مد متصل، مد منفصل، مد عارض. مد لین عارض کو نکال دیجئے، وہ کبھی کبھی آتی. 3 کالم ہو گئے. اس کا چوتھا کالم ہے احکام را. را کے اندر 2 سب کالم، موٹا پڑھنے کا، پتلا پڑھنے کا، تفخیم، ترخیص.
वो आयत में जितने राह है एनालाइज करके वहां डालना है आपको। एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सूरा, फिर अपन खत्म कर देंगे आज की क्लास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अंका विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب क्योंकि गैर मुस्तालिया का है। एक बात आपको मैं याद आ गई अभी एकदम, अभी क्लिक करी। हम रोजाना दुआ पढ़ते, क्या दुआ पढ़ते? रब्बिश रहली सदरी। किसकी दुआ है वो? मूसा अलैहि सलाम की दुआ है। मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला बोले फिरौन के पास जाओ, उसको समझाओ, उन्हें बगावत कर रहा, बहुत ही तगा, बहुत ही मैं खुदा हूं बोल रहा उन्हें, जरा जाके बात करो, समझाओ उसको। तो उन्होंने क्या दुआ करे? रब्बिश रहली, अय रब मेरा सीना खोल दे, ताकि मैं वो इतने बड़े सर्कस से मिलने जा रहा हूँ, सरफिरा है, उन्हें मार वार ना दे, मेरे को कोई गलत मेरे साथ वो ना कर दे। और डर रहे थे वो, इसका पीछे का भी वाकया पूरा, तो थोड़ा परेशान थे। उसके बाद दुआ करे, उनकी दुआ रिकॉर्ड हो गई कुरान में। क्या दुआ है हम रोज जो पढ़ रहे हैं? रब्बिश रहली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे। ये जो सूरा अभी हम पढ़ रहे हैं अभी इसमें अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमा रहे हैं? जरूर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना बारिक। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं ये सूरे में, अलम नशरह लका सदरक, हमने तुम्हारा सीना खोल दिया है। फिनिश, ग्रांटेड, विदाउट आस्किंग, हमने खोल दिया तुम्हारा सीना। एक नबी और एक रसूल वहां पे ये बोल रहा है, अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दो, मैं जा रहा हूँ फिरौन के पास, मेरा सीना खोल दो। और एक नबी को अल्लाह ताला, एक रसूल को अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? वी हैव ऑलरेडी डन इट, इट इज ग्रांटेड, इट इज डन, हमने आपका सीना खोल दिया है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको फर्क मालूम हो गया है ना, किसकी क्या फजीलत है, कौन किसका मर्तबा क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। तो क्या बोल अल्लाह ताला, क्या बोल रहे हैं? अल्लाह नशरह, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया? खोल दिया, बेशक खोल दिया। और आपका जो बोझ था आपके ऊपर, जो ये दावत का, तबलीग का और लोगों की परेशानियों का, लोगों की मुखालिफत का, हम वो बोझ भी हम आपका हल्का कर दिए। वो बोझ जो आपकी कमर तोड़ रहा था हमने हल्का नहीं कर दिया। आपका जिक्र है क्या हमने बुलंद नहीं कर दिया? हर अज़ा में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, हर मस्जिद में, पूरी दुनिया में नाम बुलंद कर दिया अल्लाह ताला हमारे नबी का, हमारे रसूल का, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम, है ना। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद आसानी है। तो क्या करना है? जब भी फुर्सत के लम्हात है, अल्लाह को याद करिए, नमाज पढ़िए, थोड़ा जल्दी उठ के 15 मिनट फजर से 4 रकात ताजुद पढ़िए, 2 रकात ताजुद पढ़िए, चलिए 2 रकात फजर से 10 मिनट पहले उठ के, फरख्त, जब भी फारिग हो, जब भी तुम्हारे फुर्सत के लम्हात हो, नमाज पढ़ो, है ना। अल्लाह बड़ा जबरदस्त सूरा है। तो आप क्या करिए, ये सूरे की प्रैक्टिस करिए, एनालाइज करिए, रा को अच्छा करके आइए, रा मोटा पढ़ने की प्रैक्टिस करके आइए। जहां जहां जबर है मोटा पढ़िए, जहां जहां साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ पे, ये तीनों कंडीशनों को अच्छा याद करके प्रैक्टिस करके आइए। कोई सवाल है तो करिए, हम दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह हजरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति
رب العزة عما يصفون عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. پاک ہے تمہارا پروردگار یہ تمہارا پروردگار جو بہت ہی بڑی عزت والا ہے جو بہت بڑی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر سلام ہو تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے سارے جہاں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مول صاحب، اللہ آپ کو بہترین صاحب. جزاک اللہ بن صاحب. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ